Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, students. Okay, let's start Good here. morning, ma'am. Good morning. Okay, let's start here. In the previous that is lecture, we have seen that is a next kingdom third, fourth one, that is a kingdom fungi. So everywhere the spores of these fungi are present. Basically, most of the spores we can found in the air, and when they get the suitable substrate or the favorable condition, they grow and reproduces, and they again the reproduction is started and the spores are dispersed. After that, the spores are dispersed into the spores. In this way, the reproduction is continuously they are taking place inside the such a type of the groups of the organisms. So we have discussed all these characteristics in the previous class. Now today we are going to discuss about the rest properties or the special features of this kingdom fungi. Just I want to ask you one question, that is the, did you get that point I have discussed here, or that is I have studied taught you? Did you get all of you? Do you have any doubt? Just directly ask me right now. That and that time you have to ask, right? You have to ask the any doubt. Okay, clear the doubts. Without clearing the doubts, don't go for move ahead, because if just things happens like this, what happened here, you are just doing your, that is mechanical work, like a machine work, जैसे कि रट्टा मारना. So don't do these things. If you have doubt regarding this any point, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो you have to just ask these questions on that time. Okay, now let me take first of all your attendance, and then we will move for the your book. Okay, wait a minute. Just read your, do you have your books, textbooks? If you anyone is there that is who don't have that book, I will send you the soft copy. So download from that and just read the that content, what is today is, क्या मैंने आज पढ़ा, ये आपको क्या करना है, उसी समय आपको क्या करना है, लर्न करना है, रीड करना है. अभी ये 10th तक आपका हो गया बहुत, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क के अलावा आपको कुछ भी नोट्स वगैरह, कुछ भी बुक्स कंप्लीशन नहीं है, होमवर्क नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैन्युअली आपको करना ही करना है. 10th तक आपको कैसा था कि आपको वो नोटबुक्स है या फिर जो आपका जो वर्क था मैथ्स का या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपको करना ही करना था. मतलब कि विदाउट दैट आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले थे. लेकिन इस समय अभी 11th 12th में क्या होने वाला है, आपका सिर्फ प्रैक्टिकल बुक जो है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी. नोट्स तो लिखने ही नहीं, वैसे भी आप लिखते भी नहीं हो, तो देंगे तो लिखते नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं. डजेंट मैटर, आपको समझ आ गया कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है पूरे साल भर में, लिखना तो कुछ नहीं है. करेंगे क्या, तो प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे, आप ये रीड करेंगे जो भी है, जो सिखाया है, क्योंकि बहुत वास्ट है सिलेबस. आपने देखा होगा तो सभी सब्जेक्ट का, ना कि सिर्फ बायो का, सभी सब्जेक्ट का वास्ट है और थोड़ा सा एडवांस है. 10th तक कैसा था, एक आपका एक मॉडरेट लेवल पे था. अभी 11th 12th में अभी आपको कैसा आएगा, थोड़ा सा हाई लेवल पे आएगा. सो यू हैव टू just focus on your studies. So one of the most important thing is just focus on what you want. Okay, let's let it go.
let's start here. Again, I'm going to share your book and we'll start here. Okay, this much part we have completed. Mucorrhizopus like this we have completed. Next है ascomycetes. So what is this phycomycetes? So depending upon the structure, structure, then the mode of the nutrition, mode of the spore formation, these are again classified into three groups. That is the Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes. Mycetes in the sense the name indicate that is a mycelium. So mycelium in the sense network like structure. See here, network like structure you can see here. Network like thread like filamentous structures are there. So that's why these are called as a mycelium, and that word is taken from that mycetes. So phyco in the sense, let's see what is this phyco meaning and why we can say that is phycomycetes. So these are the commonly called algal fungi. So mycelium is made up of the accepted cyanocystic hyphae. They commonly grow in the moist and damp habitats on decaying organic matter as well as in aquatic habitats or as a parasite on the plant. Phyco means in the sense no word means that is the basically these are the कॉमन अल्गल फंजाई. अल्गल फंजाई इन द सेंस अलगी के ऊपर रहने वाले. अलगी आपको पता है स्पाइरो वगैरह होता है, देन द सिलाजिनल होता है. ये अल्गल इन द सेंस वाटर में रहने वाले स्मॉल स्मॉल प्लांट्स. और नीचे बॉटम में नहीं, ऊपर ऊपर तैरने वाले वाटर में है रहते हैं. स्पाइरो वगैरह आपने पता होगा. शैवाल हमारे जो हम आप पॉन्ड में भी देखेंगे तो वहां पर ग्रीनिश मटेरियल ऊपर रहता है, तो वो क्या होता है, अलगी होता है. तो उसके भी ऊपर रहने वाले ये फंजाई होते हैं, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर रहने वाले ये फंजाई होते हैं. So that's why these are called as a phycomycetes. Phyco means in the sense word indicates the algal fungi, and mycetes in the sense mycelium. So algal fungi, these are commonly where they are grown in the moist places and damp habitats. तो मोस्टली डैम्प स्पीशीज रहते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेसेस है उसमें रहते हैं. और दे आर ऑल्सो ग्रोज ऑन द decaying organic matters as well as aquatic habitats. Aquatic habitats, as I told you, the algal fungi. Then the parasites on the plants के दूसरे plants के ऊपर अभी भी रहने वाले ही होते हैं. Then these are the organic materials. matters मतलब कि जो हम घर में जो हमारा कूड़ा कचरा होता है, 2 दिन कचरे वाला नहीं लेके जाता है तो एक सम डिकम्पोजिशन का स्मेल आता है. तो उस डिकम्पोजिशन में दिखने वाले पाए जाने वाले कुछ फंजाई होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ फाइकोमाइसिटीज. क्लियर दिस थिंग. सो फॉर एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस. जैसे कि मैंने बताया म्यूकर जो होता है बेसिकली हम ब्रेड जो है घर में 2-3 दिन रखेंगे ऐसे ही मॉइस्ट प्लेस पे या फिर ऐसे ही बंद करके प्लास्टिक में, तो क्या होता है वहां पर एक व्हाइटिश और ग्रीनिश और समहाउ ग्रेइश स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व कैन ऑब्जर्व. सो दैट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकर. सो राइजोपस है, ये क्या होता है, ब्रेड मोल्ड. नॉर्मली ब्रेड मोल्ड होता है मतलब ब्रेड पे उगने वाला. एंड द अल्बिगो पैरासिटिक फंगस ऑन द मस्टर्ड. मस्टर्ड जो होता है हमको पता है मस्टर्ड के मतलब राई. तो उस पे उगने वाला, उस पे आने वाला क्या एक फंगस होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्बिगो. ये नाम अलग अलग है, बहुत ही वियर्ड भी है और प्रोनाउंसिएशन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, लिखने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उसका मीनिंग आप समझ में लेंगे तो बहुत इजी मीनिंग है. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये क्या है, फंगस है, तो उसको ही साइंटिफिक वे से किस तरह से इलेबोरेट किया है, ये आपका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है ascomycetes. So name indicates that is these are called as a sac fungi. Sac fungi, why these are called as sac fungi? sac में होते हैं इसलिए. sac आपकी जो कॉलेज में लेके आते हैं वो sac इसलिए नहीं. तो what is this asco, or you can say sac fungi. These fungi are mostly multicellular, rarely unicellular. Varieties includes the yeast. So as you know that is the
अस्कोमाइटिस वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस अस्कोमाइटिस इज ईस्ट। आपको ईस्ट पता है, ड्राई पाउडर आपने यूज भी की होगी भाई कई बार ब्रेड बनाने के लिए या फिर पिज्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए। तो उस पे ये क्या किया जाता है, बेसिकली ईस्ट का ड्राई पाउडर है, हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द दैट इज वार्म वाटर। तो उसको हम क्या करते हैं, उस ईस्ट की पाउडर को हम उस वार्म वाटर में मेल्ट मिक्स करके फिर उस थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और फिर बाद में हम अपने डो में उसको ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। तो इस तरह की ये जो फंजा है, बेसिकली वो ईस्ट क्या होता है, फंजा है। हम जो खाते हैं वो भी ईस्ट है, लेकिन वो कौन से फॉर्मेट में होता है, ड्राई फॉर्मेट में होता है। लेकिन नेचर में कौन से फॉर्मेट में होता है, इस तरह के जो क्लम्स रहते हैं उस फॉर्म में रहता है। तो ईस्ट का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है। द हाइपी आर ब्रांच, हाइपी मतलब कि ये जो उनका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, हाइपी, लेट मी शो यू। ये हाइपी इसको बोला जाता है, वेट अ मिनट, ये वाला उसको बोला जाता है हाइपी। तो ये कैसा होता है हाइपी, लेट्स सी। सेप्टेड, सेप्टेड इन द सेंस मतलब कि ये जो है ये कैसा होता है, ये सेपरेट होता है, ऐसे इस तरह से सेप्टेड होता है, उसको सेप्टेड बोलते हैं। देन दीज आर sac fungi can be decomposer, parasite or coprophilous grow on dung। coprophilous in the sense जो फंजाई डंग में भी ग्रो हो सकते हैं, उनको बोला जाता है कॉप्रोफिलस। डिकम्पोजर तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम किचन वेस्ट वगैरह है वहां से बाहर निकला हुआ है, जो वहां पर डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही फंजाई भी होते हैं उसके साथ साथ में। पैरासाइट्स आपको पता है, दूसरे पे रहने वाले, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, डिकेइंग मटेरियल, वुड, लेदर, सब पे रहने वाले जो होते हैं वो है, that is the parasite। So moral and truffles are the varieties of the sac fungi। तो ये दो varieties आप देखेंगे तो ये उनका नाम है, moral and truffles are the varieties, इनके नाम है। So sac fungi and that are consumed as a delicacies। तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, टर्फल्स वगैरह जो होते हैं बनाए जाते हैं, तो इससे बनाए जाते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस ये फंजाई। नेक्स्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसे। तो ये जो नई स्पीसीज है न्यूरोस्पोरा, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, बायोटिक एंड बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एसे में, असेसमेंट जो होता है जेनेटिक मटेरियल का जो होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये न्यूरोस्पोरा यूजफुल होता है, वहां पर यूज किया जाता है। इसके नाम से अलग वराइटीज है, कौन कौन सी है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, देन द न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस इज अ ईस्ट। आपका जो ईस्ट होता है उसको सैक्रोमाइसिस होता है। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो आपको पता ही है, देन द क्लेविसेप्स, देन द न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिकली एंड बायोकेमिकली यूज किया जाता है इन द लैब। और इस तरह के ये जो ईस्ट होते हैं, फंजाई होते हैं, उनको एस्कोमाइसिटीज बोला जाता है। तो ये देखिए आप, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इनका जो चेन होता है, ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं, छोटे बड़े 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 हो जाते हैं, और एक बार ये मैच्योर हो जाते हैं तो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट अपनी यहाँ से, और नया प्लांट, नई जो नया स्पेस, नया जो या फिर माइसिलियम है, उस इस बड़े वाले और स्पोर से वो नया वाला टेस्ट हो गया, उनको मिल गया कुछ होस्ट, तो वहां पर जाके बैठेंगे और अपना नया मैंसिलियम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द अस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, तो कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई। क्या बोला जाता है, क्लब। उनका जो स्ट्रक्चर है देखा जाए तो इस तरह से होता है, ये अम्ब्रेला लाइक शेप होता है, क्लब फंजाई उनको बोला जाता है। क्लब स्ट्रक्चर ऊपर वाला जो कैप दिखती है, तो इसलिए उसको क्लब फंजाई बोला जाता है। दे आर ब्रांच, दे हैव ब्रांच मीन्स आप ब्रांचेस भी देख सकते हो उसके। सेप्टेड हाइपी, सेप्टेड इन द सेंस सेपरेट की होती है हाइपी, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है सेपरेट सेपरेट होता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक क्या होता है, बीच में पार्टीशन होता है। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल इज एगैरिकस, और वी कैन से मशरूम, गोनोडर्मा, द ब्रैकेट फंजाई। तो ये बेसिकली आपको माउंटेन्स रीजन्स में या फिर वॉल में आपको ये फंजाई दिखते हैं।
ये मशरूम्स वगैरह होते हैं एट द शेडी एंड डैम्प स्पेशेस होते हैं, और वो आप जो स्पीसीज होती है इडिबल स्पीसीज वही आप क्या करते हैं खाने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी हार्मफुल। यूज स्टील लैगो ये एक स्पीसीज है, पक्सीनिया एक स्पीसीज है। ये स्पीसीज के नाम दिए हैं अलग अलग, आप ये ध्यान में रखेंगे, एक भी एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, दैट इज अगैरिकस, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है डिटरोमाइसिटीज। डिटरोमाइसिटीज इन द सेंस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई which are known as reproduce only asexually। इम्परफेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता नहीं है, that's why these are called as imperfect, so keep this name imperfect fungi। So sometimes question may be asked like this, Deuteromycetes are dash dash fungi, so in bracket you have to get, answer will be given as imperfect fungi, sac fungi, club fungi, so we have to choose the correct answer, that is imperfect fungi, so which is also known as to produce only sexually, for example Alternaria and कोलेक्टो कोलेक्टोट्रिकम। तो ये कुछ नाम है जो डिफरेंट है, लेकिन आपको वैसे के वैसे याद करने हैं, यू हैव टू जस्ट रीड एज इट इज बिकॉज इट्स अ वेरी। नेक्स्ट है सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर किंगडम एनिमालिया। सो वी हैव कंप्लीटेड राइट नाउ द फोर्थ क्लास, दैट इज द fourth kingdom, that is kingdom fungi, and last kingdom, that is the kingdom animalia. So animalia, as you know, everyone knows about this animalia. So let me check which how many part is remaining here, only this much, today we will complete this chapter, किंगडम एनिमालिया। सी दिस अल्टरनारिया कैसे रहता है इस दूसरे प्लांट के ऊपर, देखो ये लीफ है, दिख रहा है आपको अल्टरनारिया, इस तरह से ये जो बीच बीच में लेशंस दिख रहे हैं आपको, ये वाले लेशंस दिख रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली ये फंजा है, ये इस तरह से दिखता है। आप देखेंगे इसको इनलार्ज करके व्यू इसका देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखेंगे कट करके, या फिर उसको इलेबरेट करके देखेंगे प्रैक्टिकल करके, तो इस तरह से उसका व्यू हो शो होता है। देखो इस तरह से ये होती है, these are called as a Deuteromycetes। Alternaria is one of the example of this, it grows on the as a parasite or which is living on the other plants leaves। so ये वहाँ पर रहता है। बेसिकली हम भी क्या करते हैं, आप मेथी सब्जी रहती है हमारी, जो उसमें भी इस तरह के क्या होते हैं, इस तरह का नहीं होता है, लेकिन बेसिकली वहाँ पर कुछ स्पॉट्स ऑब्जर्व होते हैं, सो दीज आर नॉट हार्मफुल। लेकिन बहुत साल पहले एक ऐसा हुआ था कि सभी फार्म्स में जो जो जहाँ जहाँ पर भी मेथी का फार्म थे, मेथी के फार्म्स थे, वहाँ पर क्या हुआ था, एक अलग तरह का डिसीज गिरा था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे कि ये जरा स्नेक्स वगैरह उसका जो अपीयरेंस रहता था, इस स्नेक्स की तरह बहुत ही शार्प वाला जो स्नेक्स रहते हैं उसकी तरह उसका अपीयरेंस रहता था। तो उसको स्टडी करने के बाद उन लोगों को इसको पता चला, साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि इट्स द डिसीज। तो दैट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो इस तरह से ये प्लांट्स में भी, प्लांट्स के लीव्स में भी रहते हैं, स्टेम पे रहते हैं, फ्लावर्स में रहते हैं, हर जगह ये दिखाई देते हैं, बिकॉज दीज आर द actually these are the very very minute and they can grow everywhere, not only on the plants, not only on the animals, they can grow in the that is in the dung also, then on the other parts of the plants, other plants of parts of the internal parts of the animals also, living thing, non living things, stone except stone and the soil, वहां पर ये नहीं रह पाते हैं, वाटर में भी ये रह जाते हैं, वहां पर भी कुछ तो खाने को मिलता ही है। लिविंग नॉन लिविंग थिंग जैसे कपड़े हैं, देन प्लास्टिक पे नहीं होते हैं, कपड़े है, वुड है, लेदर है, इस चीज पे भी ये दिखाई देते हैं। सो दिस इज अबाउट द किंगडम फंजाई। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमालिया। एज यू नो दैट इज वी आर अ ग्रुप ऑफ द किंगडम एनिमालिया और वी आर अ member of the kingdom animalia, but so member of these kingdoms are heterotrophs।
ये जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि हम भी एक एनिमल ही है। तो यहाँ पर हम कैसे हैं, हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप मीन्स विच डिपेंडेंट फॉर देयर फूड on the other organism. So adapted to holozoic nutrition. So ये holozoic nutrition ये टर्म आने वाला है, तो हम वहाँ पर उस टाइम में पे अच्छे से इलेबोरेटली देखेंगे. Like right now holozoic as it is read it, most of them have a capacity of locomotion. So most of the organisms of that members of this kingdom Animalia having the capacity of locomotion. Locomotion कर सकते हैं आराम से. कुछ ऐसे members होते हैं जो those looks like a plant but actually they are animals. So which of these plants, we will discuss this point in the 12th standard, because so many examples are there, that is those looks like a plants but they are actually animals. They are not the one characteristic is not showing in that animal is the locomotion, but the other characters it's as a animals, that's why they are included in that kingdom Animalia. So here most of them have a capacity of the locomotion. They are multicellular, eukaryotic, as you know that is our body is multicellular. Every other rest you can take the other example, that is birds also, then the cat, dog, everything. So these animals having, these are also multicellular organisms. The cell is eukaryotic in nature, means what, that is the true nucleus is present inside the cell. Next, where lack chlorophyll as well as cell wall. So what is the difference in between the plant cell and the animal cell? Here the chlorophyll present in the plant cell, chlorophyll is present, but in the animal cell chlorophyll is absent. नहीं तो हम क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. अपनी जो एनर्जी है अपनी बॉडी से ही जनरेट होती है, हमें बाहर का खाना खाने की जरूरत भी नहीं थी. लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है ना, नहीं तो होता तो हम वो भी कर लेते हैं, राइट. तो हम तो वैसे भी दूसरे एनिमल्स को मार मार के बहुत खाते भी हैं. तो अच्छा होता क्लोरोफिल ही दिया होता, हम लोगों को दिया होता, अच्छा रहता ना. तो अपना पेट जितना चाहिए बना लो, फोटोसिंथेसिस कर लो, जितना चाहिए पेट भर के खा लो. किसी को मांगने की जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं, ऐसा. लेकिन हुआ नहीं ना ऐसे, ठीक है, लेट इट गो. So here, this is a joke part. Keep it up aside. Chlorophyll. So as well as the cell wall. So another most important differentiation between the plant cell and animal cell, that is the cell wall नहीं होता है इन plants के, animals के body के जो cell होती है उसके ऊपर covering नहीं होता है, wall नहीं होती है. And plants के body की जो cell होती है उसके ऊपर covering होता है. So this is the basic difference. Growth is determinant, follow the definite pattern. In the sense determinant in the sense पैटर्न होता है. जैसे कि छोटा बच्चा 1 month 2 month 3 month, ग्रोथ उसकी कैसी है, डिटरमिन, उस एज में उतनी ग्रोथ होनी है, मतलब होनी ही है. नहीं तो वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल चाइल्ड डिक्लेयर किया जाता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है ऐसा चाइल्ड डिक्लेयर किया जाता है. तो डिटरमिनेंट है, स्टेप बाय स्टेप है. तो छोटा बच्चा जन्मने के बाद चलने नहीं लगता है, कुछ स्टेप्स हैं, तभी क्या हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट ग्रोथ, राइट. सो ग्रोथ इज डिटरमिनेंट. So in this chapter 4 we will study the in chapter 4, fourth chapter number 4 में we will study the kingdom Animalia and its further classification. तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर, उसमें हम ये एनिमालिया जो है किंगडम एनिमालिया, ये पूरा डिटेल में इलैबोरेटली हम स्टडी करने वाले हैं. पूरा एक टॉपिक जो है उसके ऊपर है. सो ये जो किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैलेंजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हम देखेंगे किस तरह से वो डिफरेंशिएशन है, ये सब उसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट है असेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंजा के, प्रोटिस्टा के एंड द मोनिरा के सिवा, ये 5 के सिवाय भी और एक एनिमल है, जो एनिमल इट्स नॉट एनिमल, इट्स ऑर्गेनिज्म, वी कैन से, और इट्स नॉट, वी कैन कॉल इट एज एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है. हम उसको कब बोलते हैं, ये एनिमल है, एक प्लांट है, एक सेल है, या फिर एक किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, कुछ तो हमें सेल्स दिखती है, वहां पर कुछ कोलैबोरेशन होता है. चलो एक ही सही सेल, तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं. सपोज एक से ज्यादा सेल्स है तो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. लेकिन जिस ऑर्गेनिजम्स की सेल ही नहीं है, ऊपर वाला सेल ही नहीं है,
सिर्फ अंदर वाला डीएनए मटेरियल है होता है। ओके, जस्ट शोइंग यू ऐसा डीएनए मटेरियल और आरएनए मटेरियल सिर्फ इतना है। तो उसको हम कैसे कंसीडर करें ये प्लांट, ये एनिमल या फिर ये ऑर्गेनिज्म है। बट सम ऑर्गेनिजम्स आर, they are as like this. So that's why the next is that is the regarding the acellular organisms, जिनके पास अपनी बॉडी की सेल ही नहीं है, नॉट अ सिंगल सेल, वो सेलुलर होते ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है, देखिए यहाँ पर वायरसेस आर were named so by the Louis Pasteur considering the meaning venom or the poison। ये जो ऐसा वाला बहुत ही शैतान वाला जो ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी ही नहीं है, वो कौन है, वायरस है। तो इसको लुइस पास्चर जो है, पास्चराइजेशन किया जो प्रोसेस है, जिन्होंने ढूंढ के निकाली थी, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ मिल्क, जिस तरह से बॉईल होता है और उसके बाद ही उसको क्या किया जाता है, उसी सर्टन अमाउंट, उसी सर्टन क्या पर टेम्परेचर पर हमें क्या होना करना पड़ता है, उस मिल्क को बॉईल करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है एंड इट्स अ वेरी हार्मफुल। ये उन्होंने ढूंढ के निकाला ये प्रोसेस, इसको बोला जाता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस ये लुइस पास्चर ने ढूंढ के निकाली थी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। जहाँ पर जो दूध था, पहले थे लोग लोग कैसे थे, तो एज रॉ मिल्क जो है यूज करते थे, लेकिन उसके बाद में कुछ बहुत सारे ऐसे डिसीजेस आए जो मिल्क से मतलब कि जो रॉ मिल्क है उसको इंजेस्ट करने की वजह से ऐसे डिसीजेस फाइंड आउट हो गए। तो इस पाश्चर, लुइस पाश्चर जो साइंटिस्ट था, इन्होंने ढूंढ के निकाला कि बॉयल मिल्क को कहाँ तक बॉईल करना है ताकि वहां उसमें से पूरे जर्म्स निकल जाए। तो ये उसने प्रोसेस ढूंढ के निकाली। नॉर्मली ये हमें बहुत एंशियंट टाइम से हम यूज कर रहे हैं हमारी प्रोसेस, लेकिन उसके पहले मतलब जो अभी सिविलाइजेशन होने के पहले एज अ रॉ मिल्क यूज minus 1. किया जाता Because of था, that, तो the term तब is getting उस minus समय of वहां y पर square. उन लोगों में बहुत Now, सारे ऐसे डिसीजेस होते थे which are because spread it's through by using the consuming the raw milk। तब ये पता चला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो नॉर्मली रॉ रॉ मिल्क ही यूज किया जाता था, लेकिन उसके 7, बाद as we are में putting the जब value of ऐसी y. चीजें सामने आने लगी कि मिल्क से ही ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहे डिसीजेस, तब ये पाश्चर थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रोसेस ढूंढ के निकाली कि दूध जो है बॉइलिंग होने तक या फिर उसके उबाल आने तक उसको क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके पहले हमने बंद कर दिया फिर उसको बॉईल करने से रोक लिया, तब क्या होते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, दूध जो है खराब होने लगता है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं घर में, ऐसे ही घर में नॉर्मल टेम्परेचर में उसको ऐसे दूध रखेंगे तो क्या होता है, कितनी कितनी देर तक वो अच्छा रहता है। तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन तो ये जो पाश्चर पाश्चर थे, ये साइंटिस्ट क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ज्यादातर रिसर्च उनका चलता था। तो इन्होंने इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको पता था, बैक्टीरिया पता था, लेकिन ऐसे कुछ था जो क्या कर रहा था, उसकी सेल्यूलर बॉडी ही नहीं थी, सिर्फ क्या कहा अंदर जाके वो क्या करता है, इन्फेक्शन कर लेता है, ये उनको पता था। तो उस उन्होंने उस समय उसको नाम दिया था वायरस। सो वायरस का बेसिकली मीनिंग होता है विनोम और पॉइजन, पॉइजनस होते हैं, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस। विनोम इन द सेंस विष, आपको पता है कि जो स्नेक्स का वगैरह होता है उसको हम विनोम बोलते हैं, राइट। और पॉइजन तो पॉइजनस थिंग्स जो होती है आपको वो भी पता है, पॉइजन अलग होता है, विनोम अलग होता है। तो इन्होंने लिटरली इसको विनोम बोला है, विनोम इन द सेंस वेरी वेरी डेंजरस। आपको सबको पता है कि आपको वो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। these obligates parasites were given the name virus by the MJ Dejerniks। ये दो साइंटिस्ट थे, पहले तो उन्होंने विनोम बोला, लेकिन वायरस जो नाम है, एक्चुअली वायरस जो नाम है, ये बेजर्निक ने उनको उस वायरस को दिया है, साइंटिस्ट है। After observation that they were able to do migrate in our agar gel। तो आगार जेल होता है, ये क्या होता है, बेस होता है जहाँ पर वायरसेस को बेस पे स्टडी किया जाता है।
इट्स लाइक अ कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो वहां पर से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। So after the observation that they were able to migrate in the agar-gel, thus the being infectious soluble agent is called as a filtrate as a contagium vivium fluidium. So ये जो वर्ड है contagium vivium fluidium, ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं, तो नॉर्मली क्या होते हैं इसमें, इट वॉज अ साइंटिस्ट स्टैनले हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। तो होस्ट सेल सपोज बॉडी के अंदर घुसे हैं तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर है, होस्ट नहीं उनको मिला है, तब ये कैसे होते हैं, कॉन्टेजियस वीवम फ्लूइडम। सो दैट इज लाइक अ जस्ट लाइक अ असेल्युलर स्ट्रक्चर, वो किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। सो वायरसेस जो होते हैं सब बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उनको क्रिस्टलाइज करना आसानी से आता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि उनका प्रेसिपिटेशन हम ले सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई वहां पर इस होस्ट सेल में, सपोज ये होस्ट सेल है बॉडी का, कुछ तो किसी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट के अंदर घुसे हैं, तो उनको वहां पर ट्रैप करना आसान होता है। लेकिन जब बॉडी के बाहर है तो उनको वहां पर ट्रैप करना आसान नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट इज द वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। मतलब क्या, उनके पास कुछ भी अपनी खुद की मशीनरी नहीं है, सेल की उतना अपना खुद का मशीन, मतलब कि उनके पास सिर्फ क्या है, ये मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, बाकी उसके ऊपर का कवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। राइट, उसके पास सिर्फ कैप्सूल है, जैसे कि हम गन का देखेंगे तो उनका गन गन उसके पास नहीं, सिर्फ क्या है वो कारतूस उसको बोलते हैं, वही है। लेकिन जब उसको होस्ट मिलता है, कुछ बॉडी मिलती है, तो उसके अंदर जाके वो डिस्ट्रॉय पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इस वायरसेस में होती है। राइट, तो ये उनका पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। दे हैव प्रोटीन कोट इन द सेंस, उनके ऊपर ये वाला जो होता है ये प्रोटीन कोट होता है। राइट, और अराउंड न्यूक्लिक एसिड स्टैंड दस कंसिडर टू बी अ सेलुलर। उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियर स्टैंड, ये जो डीएनए वगैरह है, आरएनए वगैरह है, इसके ऊपर सिर्फ एक कोटिंग होता है। मतलब यहाँ पर मैंने बड़ा ही शो कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा होता है ये ऐसा, ये देखो इस तरह का डीएनए है, उसका आरएनए है, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह का एक कोटिंग, इस तरह का एक कोटिंग होता है। तो यही होता है उसकी बॉडी, बाकी कुछ भी नहीं होता है उसके पास। एक तो प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन ऊपर वाला कोट, और ये डीएनए और आरएनए, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है उसकी बॉडी, मतलब कि नहीं नहीं के बराबर होती है। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव व्हेन इट गोज इनसाइड द होस्ट सेल। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो ये अंदर जाके ही बहुत फास्ट क्या करता है, अपनी एक्टिविटी दिखाता है, सेल के दूसरे बॉडी सेल को वो खा जाता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। ये उसके कुछ, ये सिर्फ एक ही वायरस है कोरोना वायरस, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की वायरसेस हैं जो है, अभी उनके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस, इसको भी कुछ एग्जैक्टली मेडिसिन नहीं मिला है। तो दिस इज अबाउट द अनदर थिंग। सो वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि दीज आर द इनएक्टिव मोड में रहते हैं। जैसे कि सबस्ट्रेट पे फॉल गिरे, जैसे कि आपके टेबल पे है, या फिर आपके इस चेयर पे है, कुछ बुक्स में है, मोबाइल पे है, तो इनएक्टिव मोड पे है। लेकिन जब उनको एक्टिव टच, आपका हाथ वहां पर लगा और आपने वो हाथ जो है नाक या फिर मुंह इसमें लगा दिया, या फिर आईज इस पे लगा दिया, तो क्या होता है, ये डायरेक्टली एंट्री कर लेता है आपकी बॉडी में। और जैसे ही आपकी बॉडी में एंट्री कर लेता है, वो क्या करना करता है, चालू अपना काम इतना फास्ट रैपिड हो जाता है कि विद इन 1 आवर you will be infected. So that is the most important thing regarding the virus. Viruses thus can be called as infectious nucleoprotein particles. Nucleoproteins in the sense उनका जो है they having, sorry, the one line is left here. But once they enter their specific host cell, they take charge of the cellular machinery of the host, as I discussed here. जैसे कि मैंने बताया कि सेलुलर सिस्टम पे ये अटैक कर देता है, जैसे कि जो कोरोना है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक कर लेता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो पूरा, वो जो होस्ट का जो है या फिर उस और पर्सन का है, वो क्या करने लगता है, वहां पर अपनी काम डुप्लीकेशन
इतना फास्ट कर देता है कि वहां पर इन्फेक्शन होता ही होता है. सो वायरस इज दस कैन बी विद इन, आई थिंक सो कि जो कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, ये 3 दिन 4 दिन ये बहुत ज्यादा होते हैं. ये विद इन विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड जैसे ही बॉडी से आपके कांटेक्ट हो गया इसका, तो वो विद इन सेकेंड इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है. So this the viruses thus can be called as infectious nucleobacteria. So type of the viruses types कितने हैं देखिए. As per the genetic material, viruses can be as grouped as a DNA. जिनका DNA है, जिनके पास सिर्फ DNA है, वो DNA वायरस बोले जाते हैं. जिनके पास RNA है, उनके पास उनको RNA वायरस बोला जाता है. देखिए यहाँ पर टीएम, ये डायग्राम शो कर रहे हैं यहाँ पर. टीएमई मतलब कि टोबैको का जो लीफ होता है, टोबैको आपको पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं, जो खाते हैं. तो उस लीव्स पे रहने वाला ये जो वायरस है इस तरह से दिखता है. यू कैन सी द डायग्राम. टीएमयू टोबैको मोजैक वायरस, इस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर होता है. आप देखेंगे तो ये ग्रीनिश कलर का होता है, बट उसका सिर्फ आरएनए दिख रहा है आपको. एक कवरिंग, ये जो आरएनए का ये दिख रहा है आपको, ये आरएनए, यही सिर्फ क्या होता है बॉडी के अंदर उस प्लांट के, इस प्लांट के ऊपर ये अटैक कर लेता है ये आरएनए. एक बार इस बॉडी के होस्ट के अंदर गया तो वो अपना ये रिंग जो है, ये जो अभी देखिए, ये रिंग्स ऐसे बनाने की तरह दिख रहे हैं आपको, तो ये रिंग्स बनाना चालू कर लेता है. सिर्फ उसका एंट्री करते समय यही होता है, उसके पास ये वाला चेन होता है सिर्फ, ये कुछ भी नहीं होता है. फिर बाद में जाके अंदर जाके उस प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, उसके जाने के बाद ये अंदर जाके ये बना देता है. और ये फिर से एक सेल हो गई, ये खत्म, दूसरी सेल को अफेक्ट करना, तीसरी सेल को अफेक्ट करना, चौथी सेल को, इस तरह से इसका काम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है विद इन ए सेकेंड. सो प्रोटीन कोट कॉल्ड एज अ कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द स्मॉलर यूनिट. देखो इसका स्ट्रक्चर पहले देखो, फिर हम डायग्राम्स देखेंगे. ये बैक्टीरियोफाज है, दूसरा वायरस है, ये वाला हुआ, ये टोबैको मोजैक वायरस हुआ. नेक्स्ट वाला जो है ये दूसरा वायरस है. सो उसका नाम है बैक्टीरियोफाज. तो बैक्टीरियोफाज कहाँ पर होता है? बेसिकली बैक्टीरिया ईटिंग, बैक्टीरिया को खाने वाला. देखो बैक्टीरिया कितने माइन्यूट होते हैं, और उसके उससे भी क्या होता है, उससे भी वायरस माइन्यूट होता है, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को खा लेता है. सो बैक्टीरिया ईटिंग, बैक्टीरियोफाज इन द सेंस बैक्टीरिया ईटिंग वायरस. ओके. So this remaining part we will discuss in the next lecture, which is I think so on the, wait a minute. Next lecture we will continue this point. Okay, I'm going to end now.